everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is the Mughal 16th to 17th century. Let's start the chapter. Chapter 4, the Mughal 16th to 17th century learning objectives. Through this chapter we will going to know about establishment of the Mughal Empire, succession in Mughal Empire, Akbar, Mughal court, Mughal administration and key offices, agrarian relations during Mughal period and literary sources of the Mughal period. So this is the timeline given. Let's start. The Mughals were the descendants of two great dynasties. अब Mughals जो थे वो बड़ी बड़ी दो dynasties के आगे उनके descendants थे. From their mother's side वो थे they were the descendants of Genghis Khan. जबकि while their father's side they were the successor of Amir Timur. Genghis Khan एक मंगोल थे जिन्होंने रूल किया ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, while Timur was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. We have studied about both of them in previous chapter, but the Mughal felt proud of their Timurid ancestors only. उन्हें बहुत proud feel होता था. This was because Genghis Khan was associated with the murder of numerous people. जो Genghis Khan थे वो उन्होंने बहुत लोगों के मर्डर किए थे, जबकि तिमूर ने दिल्ली पे कैप्चर किया कैपिटल in 1398. Each Mughal ruler got a picture made of Timur with himself. So this is the Babur's ancestor, Genghis Khan, mother's side. Descendant थे उनके Yunus Khan, then Kutluk Nigar Khanum. This is the Amir Timur father's side. Descendant थे Miransha Mirza, Sultan Muhammad Mirza, Sultan Abu Said Mirza, Umar Sheikh Mirza and Babur. Now establishment of the Mughal Empire. Zahiruddin Muhammad Babur ने उनको गद्दी मिली ऑफ फारगाना इन 1494 जब उनके फादर की डेथ हुई एक्सीडेंटली. फारगाना वो स्मॉल प्रिंसिपैलिटी थे इन सेंट्रल एशिया. He succeeded his father. उन्होंने अपने फादर को सक्सीड दिया at the age of 12 years. In order to expand his empire, उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को 5 times. अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए इंडिया को उन्होंने 5 times इन्वेड किया. एंड इन द 55th एक्सपीडिशन में उन्होंने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोधी को इन AD 5026 में पानीपत. एंड उन्होंने दिल्ली और आगरा पे कैप्चर किया. बट डेसिसिव बैटल जो हुई बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 में एट विलेज कानवा नियर आगरा. राणा सांगा किंग थे मेवाड़ के. ही वॉज द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दैट पीरियड. उस टाइम के बहुत ही बड़े अच्छे किंग रहे. इस बैटल में राणा सांगा डिफीट हुए और उसके बाद बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. इन AD 1528 में उन्होंने डिफीट किया राजपूत्स को एट चंदेरी. इस तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश कर अपना कंट्रोल ओवर पंजाब, दिल्ली एंड गैंगटक प्लेन्स एज फार एज बिहार. सो डायनेस्टी AD 1540 से 1555. ड्यूरिंग AD 1540 टू 1555 शेरशाह सूरी की फैमिली, जिनको सूरत डायनेस्टी कहा जाता है, उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर रूल किया. शेरशाह सूरी AD 1540 से 45. शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने मालवा पे कॉन्कर किया, राजपूताना, मुल्तान, सिंध एंड पंजाब ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेन. ही डाइड इन एक्सीडेंटल explosion of gunpowder in 1545. He is remembered as one of the ablest rulers in medieval India. His system of administration was followed by Akbar. He restored the Grand Trunk Road, which was built during Mauryan period के time पे बनाई गई थी. It runs from Kolkata to Peshawar. So within 10 years of his death, हुमायूं ने recaptured करा Delhi and Agra. Succession in Mughal Empire. The Mughals followed the Copacenary rule of inheritance. इसमें inheritance divide होते हैं amongst all the sons. This system was followed by the Mughals and Timurids. तो ये जो system है ये follow किया गया by the Mughals and Timurids. They did not believe in the primogeniture rule of succession में believe नहीं करते थे. Primogeniture एक system है inheritance का जिसमें eldest son जो होता है वो अपने father की property पर उसका right होता है. अकबर, हुमायूं का बेटा सन्स अकबर वॉज क्राउन. उनको एम्परर बनाया गया एट द एज ऑफ 13 years. एंड बैराम खान एक ट्रस्टेड ऑफिसर थे हुमायूं के, वो उनके रीजेंट बने. हेमू, जनरल मोहम्मद आदिल शाह ऑफ द सुर डायनेस्टी हैड कैप्चर्ड आगरा आफ्टर हुमायूं की डेथ के बाद उन्होंने आगरा पर कैप्चर किया. बैराम खान लेड द मुगल आर्मी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू. द मुगल आर्मी इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड रीकैप्चर्ड आगरा. Soon after Akbar ended Behram Khan's agency and took control of the government, तो अकबर ने extend किया अपने empire को following ways में. Through direct conquest, through matrimonial alliance with Rajput princess, by winning the trust of Rajput ruler and giving them high positions in administration.
फैक्ट ट्रेजर, राणा प्रताप सन ऑफ राणा उदय सिंह के बेटे रिफ्यूज, उन्होंने मुगल सुजारनिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया. ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576. वो डिफीट हुए, उन्होंने शेल्टर लिया अरावलीज में. राणा कंटिन्यू टू रेजिस्ट द मुगल्स एंड वाज एबल टू रिकैप्चर लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम. राजपूत पॉलिसी, अकबर ने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत चीफ्स. मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स ने अकबर की सुजारनिटी को एक्सेप्ट भी किया. हाउएवर some Rajput chiefs looked upon Akbar with suspicion and refused to yield to him and accept his suzerainty. Ruler of Mewar, Rana Uday Singh was once a chief थे in 1567 CE. अकबर ने डिफीट किया मेवाड़ को एंड उसकी कैपिटल चित्तौड़ को उन्होंने कैप्चर किया in spite of brave resistance put up by Rana Uday Singh. Territorial expansion. After consolidating his empire in North India, अकबर ने अपने officials भेजे to persuade the rulers of Ahmednagar, बीजापुर and Golconda to accept him as a suzerain. But उन्होंने refuse किया. उन्होंने फिर wage war किया against चांद बीबी के, जो तो क्वीन ऑफ अहमदनगर थी, जो डिफीट हुई थी. In 1596 में बेरार नेक्स्ट हुआ, जोड़ लिया गया. 1601 CE में खानदेश was also next to मुगल एम्पायर, वो भी जुड़ गया. और ड्यूरिंग अकबर्स के टाइम पे बंगाल बहुत ही रिच और फर्टाइल प्रोविंस थे, ट्रेड रिलेशंस विद साउथ एशिया एंड चाइना. तो इन 1574-76 CE में अकबर ने डिसाइड किया टू अंडरटेक अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बंगाल. सून आफ्टरवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में अकबर ने कश्मीर पे कॉन्कर किया इन 1586 CE, कंदाहर एंड कबूल इन 1587 CE एंड सिंध इन 1590 CE. अकबर का एम्पायर 1601 CE में एक्सटेंड हुआ फ्रॉम हिंदुकुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट and from the Himalayas in the north to Godavari in the south. Akbar died in 1605 CE. His mausoleum is situated at Sikandra near Agra. Painting. During Akbar's time, जो art of painting received करती है royal patronage. A number of royal कारखानास जो हैं और painting studio set up होते हैं for artists from various parts of the country to gather and work together. Two painters of fame in the court of Akbar were Basawan and Daswant. Religious policy. Secular outlook and tolerant policies of Akbar are well known. उनकी secular approach led him to invite scholars from all religious beliefs and hold discussions with them in Ibadat Khana, house of worship. अब जो secular outlook था और tolerant policies जो थी अकबर की, वो सबको पता थी. उनकी सेक्युलर अप्रोच ने ही उनको बहुत सारे स्कॉलर्स को इनवाइट किया, अलग अलग जो अलग अलग बिलीव्स को मानते थे, सब अलग अलग थिंकिंग, सब अलग रिलीजन्स के थे. डिस्कशंस होते थे, कहाँ पर होते थे? इबादत खाना, जो जहाँ पर हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता था. ही एबॉलिश जाजिया, पिलग्रिम टैक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम. तो इसमें वो इस बारे में डिस्कशन होता था, उन्होंने एबॉलिश करा ये सब. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, सुलेह कुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस. इन 1582 में उन्होंने प्रोमुलगेटेड एक न्यू रिलीजियस ऑर्डर, जिसको दाऊद इलाही और डिवाइन फेथ कहते हैं. इट वाज आल्सो रेफर्ड एज दिन इलाही और डिवाइन मोनाथिज्म. इट इंक्लूडेड द गुड पॉइंट्स ऑफ रिलीजियस. इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएट्स और सब्जेक्ट्स टू फॉलो इट. केस स्टडी. नूरजहां. एम्परर जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी करी थी, डॉटर ऑफ मिर्जा गियास बैग. वो एक नॉबल थे अकबर के कोर्ट में, और उन्होंने अपना टाइटल दिया था, उसको टाइटल नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड. एम्परर जहांगीर कॉन्फर्ड अपॉन नूरजहां स्टेटस ऑफ बादशाह बेगम. नूरजहां's पोजीशन गॉज हो सकती है फ्रॉम द फैक्ट कि her name appeared on all famines along with imperial signature and coins were stuck in her name. Jahangir died in 1627 and was succeeded by Shahjahan. After Jahangir's death, Noorjahan retired from court life and she died in 1645. Now the Mughal court. In governance and court decorum, Mughal empire followed करता है Central Asian traditions को. Tradition of considering a ruler as a representative of God on earth, it was reflected in the fact कि Mughal throne को kept किया गया on a raised platform. Nobles and officials bow to the ruler. दीवाने आम meant for meetings के लिए होता था और the general public, और दीवाने खास तो था वो hall of private audience थी, जहाँ पर emperor received his personal guest. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड की ऑफिसेस. मुगल एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड था और एम्परर वाज सुप्रीम कमांडर थे ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड दे हैड सेवरल ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन. वजीर ऑफ वकील हेडेड द दीवाने वजारत. ही लुक्ड आफ्टर द इनकम, एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स. मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर आर्मी एंड मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे. चीफ सरदार ऑफ द चीफ काजी लुक्ड आफ्टर ऑल द चैरिटीज, रिलीजियस अफेयर्स, एजुकेशन.
and also headed the Department of Justice. Khane-e-Zaman looked after the imperial household. Daroga-e-Dag Chowki was in charge of imperial post, and the Mir Atish supervised the artillery. The Diwan-e-Tan looked after matters related to Jagirs. The Daroga-e-Taksal was the supervisor of the royal mint. डिवीजन ऑफ मुगल एम्पायर. अब किंगडम को डिवाइड किया गया सुबाज और प्रोविंसेस अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार्स या फिर गवर्नर्स. सुबाज को सब डिवाइड किया सरकार्स में, सरकार्स को सब डिवाइड किया पारगानास में. पारगानास को कंसिस्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे विलेजेस होते हैं और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है बाय पंचायत. मनसबदारी सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज मनसबदारी सिस्टम. इट वॉज अ रिफाइंड फॉर्म थी इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. मनसब का मतलब रैंक और पोजीशन होता है अरेबिक में. तो इट वाज अ ग्रेडेड सिस्टम था, हेरिडिटरी नहीं था. हर एक ऑफिसर को असाइन किया जाता है एक मनसब और कॉल्ड मनसबदार. यूजुअली एक मनसबदार एक सर्विस में एंटर करते हैं लो रैंक पर, बट हायर रैंक्स पर रोज करते हैं थ्रू प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी एंड सर्विस. हिज रैंक डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हॉर्समैन सवार ही वुड मेंटेन. मनसबदार्स ने फॉर्म किया रूलिंग ग्रुप इन द मुगल एम्पायर. वो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड कार्ड्स. तो वॉर के टाइम्स में किंग मोस्टली यूज करते थे ट्रूप्स ऑफ मनसबदार्स. ही आल्सो हैड एन आर्मी ऑफ वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स टू अवॉइड डायरेक्ट थ्रेट टू हिमसेल्फ. मनसबदार्स को कैश पे पे किया जाता था जबकि अदर्स जागीर रिसीव करते थे. दे मेंटेन देयर एक्सपेंसेस थ्रू द इनकम फ्रॉम जागीर्स. एग्रेरियन रिलेशंस ड्यूरिंग मुगल पीरियड. अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर्स राजा टोडरमल चीफ आर्किटेक्ट थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था सिस्टम जिसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है. Upstate land was called Khalisa. It was divided into different categories as per its produce and fertility. 4 main categories land की थी, पलाज, परौती, चाचर एंड बंजर. पलाज कैटेगरी थी ऑफ फर्टाइल लैंड की जो ऑलवेज कल्टीवेट होता है. परौती लैंड kept fallow cultivated for 1 or 2 years to regain fertility. Chachar was the land kept fallow for 3 to 4 years to regain fertility. And Banjar was the lowest quality of land which was not cultivated at all. बीघा यूनिट ऑफ लैंड है जो मेजर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक्स. स्टेट्स का शेयर वाज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस विच वुड बी पेड आइदर इन कैश और इन काइंड. लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड. अब क्या तरीके थे उनके? टुजुके बाबरी, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी रिटन इन Turkish. Humayunama is a biography of Humayun. It was written by Humayun's sister Gulbadan Begum on the request of Akbar. Akbarnama and Aine Akbari written by Abul Fazl. They give a detailed account Akbar के रुइन के दिए. Akbarnama 3 volumes में है. Aine Akbari in its 3rd volume. Muntaqub al-Tariq was written by Badoni. तुजुके जहांगीरी autobiography जहांगीर की थी. Padshah Nama written by Abdul Hamid Lahori और फुतुहते अल-गारी written by इजर फाल्स नगर. तो अकाउंट्स बाय फॉरेनर्स जो विजिट करते थे इंडिया ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड, जैसे कि राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, पीटर मंडे, ट्रैवनियर, निकोलो मैनुचू एंड फ्रॉक्रिस बिनेट प्रोवाइड अस विद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल पीरियड. योर वाइज what were the advantages of centralized system of administration? Now let's come to the think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. Now, laid the foundations of Mughals rule in India, Babur. The new religious order started by Akbar was referred to as Jazia. Who refused to accept Mughal suzerainty? Rana Pratap. State's land under Mughal administration was called Khalisa. Let's do the fill in the blanks. Dash supervised the artillery, Mir Atish. Dash was a land kept fallow for 3 to 4 years, Thatcher. Dash is in the charge of the imperial post, Daroga, the Dak Chowki. That looked after the imperial household, Khane-e-Zaman. Now let's do the true and false. Sher Shah laid the foundation of Sudha dynasty, true.
The word mansab means rank or position in Persian. True. Shah Jahan conferred upon Nur Jahan the status of Padshah Begum. False. Babur was a descendant of Timur. True. Now let's do who am I. My name means light of world. Nur Jahan. I followed the practice of friendship with Rajputs. Akbar. I was Akbar's revenue minister. Basawan. I was a painter in Akbar's court. Wazir. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.